2014 से 2019 तक रियल इस्टेट की नैया पार किसने की? तो वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। और राहुल नाहर, ही इज फ्रॉम पुणे, मेरे अच्छे पहचान के, मेरे दोस्त है, नजदीकी है। ही इज ट्रूली पायनियर इन सक्सेसफुल अफोर्डेबल हाउसिंग, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट एंटायर इंडिया। राहुल शेठ, आप जितना फ्रीली बात करोगे और हमारे सुनने वाले को आपके अनुभव का जितना फायदा दोगे, उतना आज का सेशन सक्सेसफुल होगा। और टू श्री राहुल नाहर फॉर हिज गाइडेंस। Thank you, Shantilal ji, and thank you for the great introduction. Uh, Good evening, everybody. I think we will start with the webinar, and I will just lay down the topics in the webinar. First of all, we will talk about the today's situation of Corona in the world and in the country. Second topic, what it has impact on real estate, positive and negative. Third is what are the action points for us. And fourth will be what are the demands from our industry to government. And fifth topic will be affordable housing. So likewise, I am basically going to speak on these various topics. First of all, I will start with the Corona current situation of world in the light of Corona. Basically, as everybody knows, Corona is a new reality now, and it has disrupted not only India but all the world. Today, there are millions of Corona patients in the world, and according to the world estimates, the vaccine minimum 12 to 16 months away, basically, which means that our life is not going to change for a short term, but this is going to remain for a long term. Plus, there are talks that even if the vaccine comes, there is a relapse, as it occurred in China. There is a relapse of this virus, and plus they are saying that even mutations can happen. So I think whatever pre-corona era and post-corona era will be very different, and this will change our life drastically in the future. So basically, what impact it has on various factors. First of all, I will talk about the macroeconomic factors. The global GDP will go down by 2% according to the estimates. USA will enter into a recession, and this will be a long drawn recession. Europe will be in a very big recession again, because like countries like Spain, Italy are like new hotspots for corona. China, since the virus has come from China, is having a lot of trust issues, and a lot of investment is going away from China because of this. You must be knowing the talks going on about this virus in the context of China. But surprisingly, India is a bright spot in all of this. And this is because even having 130 crores of population, we have hardly 10,000 patients of corona and like 400 deaths up till now. Of course, every death is important, every life is important. But seeing at the humongous population of India, today we are less affected by corona than the other countries. So India is actually shining as a bright spot in the post-corona world. Basically, what it means for India is also that since any investor, if he wants to invest, if he wants to allocate capital, any fund manager across the world, whenever he wants to allocate capital, he has 4 to 5 choices. And these choices are in terms of subcontinents. One of the subcontinents is USA, which was the favorite destination for investment till now. Then the second destination for investment, which was favorite, was Europe. Third was China. Fourth was Middle East subcontinent, and fifth was emerging countries. Now, as you know, USA is entering into recession. Europe is entering into recession. China is having this trust issues. Middle East also is not favorable now anymore for investment. So what basically fund allocation will happen will come mostly to the emerging countries.
and India is the largest economy in the emerging countries. So I foresee a lot of investment coming to India, and this will in fact also create more capital formation in India. Over and above this, also I have heard, and many of you must have also heard, that many factories also are trying to shift base away from China, like Japan and American companies wanting to shift away from China. Obviously, India is a good destination for them because it has a domestic big marketplace. It has a depth. It has a good democracy, and it is a shining spot after this Corona crisis. So I see a lot of factories shifting to India in the post-Corona era. So overall, if more investment and more production, more manufacturing comes to India, it will create more jobs, it will create more demand. And I think we should not be surprised if economy, you know, gets into an upswing maybe after a year. So this is my analysis about Indian macroeconomic factors. Secondly, what I think will change in life is people will use basically digital technologies a lot more. Since this corona is there for now a long time, people are used to this Zoom meeting, video conferencing, which we didn't use it so much in the pre-corona era. Now just imagine this meeting, 1,000 people are already we are having a meeting of 1,000 people, and within like in no time we can meet and we can have our discussion. Imagine a meeting of 1,000, physical meeting of 1,000 people. So much planning goes in, so much traveling, so much cost, and it's a wastage of time, money, everything. So now people will get to use these digital technologies more in day-to-day business, which will have a greater impact, greater efficiency in the business. So that is my second. That is the second impact which I think will happen. Thirdly, I think government also is planning a very big stimulus package, and which basically from the sources which I get to know is like the package will be like around 10% of the GDP. Now this will throw a lot of cash in the system in this coming year, and this cash once comes into system will basically generate demand. And once the demand generates, I mean real estate is a very big beneficiary of it. So I think this thing also can happen also. Now, what are the positives for real estate and what are basically the negatives for real estate in this corona crisis? I think the biggest positive, which I can surely tell today, and you will also all will agree, is that people have understood the importance of home after this corona crisis. Because, I think most of the Indian population in cities living in the substandard housing, slums, chawls, they all will basically try to move themselves into organized townships, organized buildings, because how important now the sanitation, how important the health issues, and people have well understood the importance of living in a organized township or organized society. So this I think will be a very, very big positive for real estate, and people now have understood the importance of home, which is a very big positive for us. Secondly, as you have seen in last 2-3 months, how volatile the stock market was, and it has almost got down by 30 to 40%. People who have been investing in stock market historically in last 4-5 years have not only lost their capital, but also people who have invested in SIP and other mutual funds have also basically lost their capital. So this basically have reduced their confidence in stock market. And as you know, the biggest asset class which competes with the stock market is real estate. So I think a lot of capital, a lot of people will start investing in real estate, since I think that is the only asset class which basically you can compare with the stock market investment, and also it can appreciate in future. So this is again the second, I think, very big positive for real estate. Thirdly, I think rupee has depreciated a lot after this corona crisis. So I think the depreciation of rupee, will India will certainly become attractive for NRIs and foreign funds.
because every depreciation in rupee makes our country more attractive to foreign people and NRIs. So I think that investment also will come in real estate because of the depreciation of the rupee. तो मुझे लगता है कि ये रुपया जो गिरा है लास्ट के 2-3 महीने में, उसके वजह से इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है बहुत सारे फॉरेन फंड्स के लिए भी और एनआरआईज के लिए भी. सो आई थिंक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर वो साइड से भी आ सकता है. सो ये तीसरा पॉजिटिव है रियल एस्टेट के लिए. अभी कुछ नेगेटिव जो रियल एस्टेट के लिए हुआ है वो थोड़ा सा अपन बात करेंगे और उसके ऊपर भी अपन देखेंगे. बेसिकली ये आफ्टर दिस कोरोना क्राइसिस आई थिंक there will be a lot of job loss in the market. So like industry like restaurants, hotel industry, tourism, malls, cinema, even to some extent automobile infrastructure, a lot of people, job loss will happen, which in short term will affect the demand in the real estate. So that I think is a negative, but again this will only be in short term. I think world will catch up in a matter of 2-3 quarters, and I think the life will return to normal. That is what my prediction is. But in short term, of course, this is a dampener. Secondly, क्या है कि बहुत सारे जो रियल एस्टेट जो कस्टमर्स हैं वो आज घर खरीदने के लिए वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज आज पता नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में भाव टूटेंगे, 10 से 20% का मंदी आएगा, ऐसा बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं. मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है. मुझे लगता नहीं कि भाव टूटेंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आज 4 साल हो गए रियल एस्टेट के अंदर मंदी चालू है. 2017 से लेके अभी तक, 2016 से लेके अभी तक मंदी चालू है. ऑलरेडी अपना जो रेट्स है वो बॉटम पे है, इससे नीचे जा नहीं सकता, बिकॉज जो लागत है प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो लागत उसके अंदर ऑलरेडी कोई मार्जिन नहीं बचा है. तो अगर इससे अगर रेट्स कम होंगे तो प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे. तो बेसिकली आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता कि रेट्स कम होंगे, बट फिर भी जो मकान खरीदने वाले कस्टमर्स है वो सोचेंगे कि हम लोग थोड़ा रुक के लेंगे, इमीडिएटली जंप नहीं करते. तो वो हो सकता है कि 6 महीने के लिए अपने को शायद डिमांड कम रहेगा मार्केट में, बट एक बार लोगों को ये थोड़ा सा नॉर्मल सी आ गया और लोगों को मालूम पड़ गया कि कुछ रेट्स नहीं कम हो रहे हैं, तो अगेन वो डिमांड फिर से वापस आ जाएगा. और लास्ट पॉइंट ये है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, वो लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बिकॉज बैंक्स विल ऑल्सो बी लिटिल कॉशियस टू लेंड. प्लस एनबीएफसीज का भी जो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम चालू है उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स रहेंगे. तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ स्लाइटली डैमनर फॉर रियल एस्टेट. सो ये जो बातें अपन ने अभी की, बेसिकली दिस वर फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट द रियल एस्टेट. बेसिकली अभी नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर जाते हैं कि अभी अपन एक्शन पॉइंट्स क्या है अपने लिए, व्हाट इज द एक्शन प्लान. मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वेबिनार आर कनेक्टेड टू रियल एस्टेट. दे आर आइदर डेवलपर्स और बेसिकली वर्किंग इन द डेवलपमेंट कम्युनिटी. सो अपने लिए एक्शन पॉइंट्स क्या है. पहले मैं पर्सनल लेवल पे एक्शन पॉइंट्स की बात करूंगा और उसके बाद में अपन बिजनेस लेवल पे बात करेंगे. तो पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है बेसिकली, और अभी अपन जो शायद 20 दिन का समय हो चुका है और मेरे ख्याल से 10 दिन चलेगा, तो 1 महीना अपने को जो लॉकडाउन, 1 महीने से भी ज़्यादा थोड़ा सा लॉकडाउन के अंदर है, तो इसके ऊपर हमने अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना चाहिए. आगे का जो गोल्स है, आगे के जो बिजनेस गोल्स है, आगे का जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजीज है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा टाइम, इतना खाली टाइम फिर से कभी मिलेगा नहीं शायद. प्लस नीडलेस टू से कि अपना हेल्थ और माइंड के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड कि इतना जो खाली टाइम अपने को मिला है उसका यूटिलाइजेशन अभी अपन कर सकते हैं उसका इस चीज़ों में. सेकेंडली अपन फोकस कर सकते हैं लर्निंग्स के ऊपर, बिकॉज देर आर मेनी कोर्सेज ऑन यूडेमी. इवन हार्वर्ड ने भी कुछ फ्री कोर्सेज दिए हैं, तो फ्री कोर्सेज करके शायद अपन अपना स्किल लेवल बढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं. एंड मेरे ख्याल से हेल्थ और लर्निंग के ऊपर थोड़ा फोकस होना चाहिए. ऑन द बिजनेस फ्रंट आई थिंक जो डेवलपर कम्युनिटी है उसमें आज सबसे बड़ा 1 साल का जो फोरकास्ट है, जो मुझे लगता है
उसमें सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कॉस्ट कटिंग के ऊपर। जो भी वेस्टेज है, जो भी कॉस्ट है कि जहाँ पे रिटर्न्स आ नहीं रहा है, उसको कट करना पड़ेगा, बिकॉज लिक्विडिटी टाइट रहने वाला है, आगे फंडिंग मुश्किल होने वाला है। तो 1 साल तक का जो पीरियड है, अगर अपने को सर्वाइव होना है और अगर अच्छी तरह से इसको पार करना है, तो अपने को कॉस्ट कटिंग के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और कॉस्ट कटिंग will be very very important in this 1 year. Third point which I think is will be very important is to conserve cash. जो भी अपने पास कैश है उसको अपन कंजर्व कैसे कर सकते हैं बेसिकली एज अ डेवलपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली कैश कंजर्व करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपेंडिचर तो कट करो ही, वो तो करना ही है, बट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट बाय एनी न्यू लैंड, डोंट बाय एनी न्यू लैंड। But at the same time, I am not even saying don't do any agreements for joint venture or development management. Of course, I think this is my opinion. We should go for agreements which are joint venture agreements, which are development management agreements, which are low investment entries into real estate. Because इससे क्या होगा बेसिकली कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होगा, प्लस तुमको स्केल मिलेगा, और स्केल जैसे ही मिलेगा तो तुम्हारा परसेंटेज कॉस्ट जो है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो है, ऑर्गेनाइजेशन बोलो या एडमिन खर्चा बोलो, वो परसेंटेज कम होएगा। तो इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि लैंड बाय मत करो, बट जॉइंट वेंचर एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट जरूर करो। इनफैक्ट वो बहुत ज़रूरी है। ये जो मंदी का माहौल है, इसमें परसेंटेज ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कम करने के लिए अपने को स्केल बढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ द फोर्थ आई थिंक इशू विच आई थिंक यू शुड डू। और जो पांचवा है, अभी बहुत फोकस रहने वाला है इसमें फंड मैनेजमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट भी शायद जो स्टिमुलस दे रही है अभी, वो उससे बहुत सारा लिक्विडिटी मार्केट में आएगा विद इन 6 टू, ये जो 1 साल का जो पीरियड है उसमें लिक्विडिटी काफ़ी रहेगा। तो अगर अच्छे कॉस्ट पे अगर फंड अवेलेबल है, तो उसको उसको थोड़ा सा बिजनेस के अंदर एज अ वर्किंग कैपिटल करके लेना चाहिए, बिकॉज मे बी कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। और अगर ये स्टिमुलस अभी आ रहा है तो इसमें अगर अच्छा कैपिटल मिलता है लॉन्ग टर्म विद गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक वन शुड गो फॉर इट। सिक्स्थ जो बहुत क्रिटिकल इशू है वो है कस्टमर मैनेजमेंट, और ये समय में वो सबसे क्रिटिकल है, बिकॉज इस समय में कस्टमर भी थोड़े से फियरफुल रहेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर, कि उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बेसिकली। और वो अगर उनके फियर निकालनी है, तुमको उनका रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा इन अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट वे। और जो उनका कलेक्शंस है उसके ऊपर भी इन अ वेरी लिबरल वे तुमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर को अगर तुम ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो कैंसलेशन या इस तरह की बातें हो सकती है। तो वो अवॉइड करने के लिए उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कंप्लीशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। आई थिंक ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, बिकॉज एज यू नो कि ये जो 2-3 महीने का पीरियड का जो लैग है, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 6 महीने का लैग रहने वाला है। बिकॉज लेबर जो ऑफिस चले गए, माइग्रेंट लेबर, वो कभी आएगा और वो कितने संख्या में आएगा, उसको कितना टाइम लगेगा, लाइफ को नॉर्मलसी में आने में कितना टाइम लगेगा, साइट्स को रीओपन करके लेबर ये करके कॉन्ट्रैक्टर्स को मोटिवेट करके चालू करने में एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 6 महीने का समय लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉर फुटिंग के ऊपर ये 1 साल में जो भी प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, जो भी हमने इन्वेंट्री सेल की है, उसको कंप्लीट करने के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। बिकॉज वही एक चीज़ है कि जो कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस फिर से ला सकती है सिस्टम में। 8वां पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन पॉइंट्स में कि जो सेल्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि विद इन द पीरियड ऑफ दिस 3 to 6 months सेल्स विल बी स्लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्लो रहा फिर भी वो बेसिकली उसके लिए डेस्परेशन में आके प्राइस कट करके बेचना नहीं चाहिए। बिकॉज एक बार तुमने वो प्राइस कट करना शुरू किया तो कस्टमर शायद लेगा, ऐसा कोई उसका गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्राइस सेंसिटिव इतना है रियल एस्टेट मार्केट, और इसलिए मुझे लगता है कि बेसिकली
प्राइस डेस्परेशन में कट करके बेचने के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उससे हो सकता है कि कस्टमर और डर जाए और जो बेसिकली लेने वाला है वो भी शायद फिर आगे ना आए, क्योंकि एक बार प्राइस कट हो गया तो फिर क्या है, लोगों को और लगता है कि और प्राइस कट होगा। तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए प्राइस, थोड़ा 3-6 महीना तकलीफ होएगा, बट उसके बाद में अल्टीमेटली पीपल विल आल्सो नो कि दिस इज द बॉटम एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन अ बिग वे। तो मुझे लगता है कि सेल्स में ये थोड़ा सा डेस्परेशन नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये मेरे एक्शन पॉइंट्स थे जो बेसिकली पूरे सेक्टर के लिए आई थिंक सारे जो अपने वर्टिकल्स है कंस्ट्रक्शन से लेके कंस्ट्रक्शन, कस्टमर मैनेजमेंट, सेल्स, उसके ऊपर मैंने बात किया। अभी बेसिकली गवर्नमेंट के साथ में क्या डिमांड अपन, ये जो मेरा टॉपिक है डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट, जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेमिनार्स में मैंने देखा कि बहुत सारे जो रिनाउंड स्पीकर्स हैं उन्होंने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी का जो ये है, स्टैम्प ड्यूटी कट करना चाहिए, या बहुत लोगों ने बोला कि जीएसटी कट करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हो सका तो नथिंग लाइक इट, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी अगर कट हो सकता है तो ज़रूर मांगना चाहिए, बट मुझे डाउट है कि वो होएगा, बिकॉज as everybody knows here कि state government or central government doesn't have funds to basically give this relaxation. तो अगर हो सके तो we should basically demand it, but we should not rely that ये होएगा. But what we can basically do and basically ask from government, I am very clear about few ideas which we can basically ask from government. One is basically lower interest rate for project financing, developer financing. This basically we can ask. Government can subsidize these rates, and this will actually benefit us in long term, because project cycles अपने 3-3, 4-4, 5-5 साल के हैं, और अगर उसमें अपने को थोड़ा भी 2-3% का भी फर्क पड़ जाता है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट साइकिल वो फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो अपन ने मांगना चाहिए और वो गवर्नमेंट दे सकती है मुझे लगता है, बिकॉज एनीवेज आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में उसका ट्रांसलेट होना कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि लोअर हाउसिंग फाइनेंस इंटरेस्ट रेट, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज आज अगर अपन देखेंगे तो कंट्री में नॉर्मली हाउसिंग फाइनेंस इज अवेलेबल एट 8%, सब 8%। अगर इसमें और 2% की राहत मिल जाती है, सपोजिंग 6% तक हाउसिंग रेट आएगा, आ सकता है अगले 6-8 महीने में, तो दिस विल बूस्ट डिमांड लाइक एनीथिंग, बिकॉज इसमें बहुत सारे जो कस्टमर्स थे जो ऑन द एज थे, जिनका ईएमआई उनका बेसिकली बैठ नहीं रहा था, जिनका बजट नहीं बैठ रहा था, ऐसे लाखों कस्टमर वो बजट के अंदर आ जाएंगे और वो हाउसिंग के लैडर में आ जाएंगे बेसिकली। तो वो गवर्नमेंट के पास से बेसिकली हमें मांगना चाहिए लोअर डेवलपर फाइनेंस रेट, लोअर हाउसिंग फाइनेंस रेट। तीसरी चीज जो मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेरा। बेसिकली रेरा के जो लॉज है उसके अंदर अभी सभी को पता होगा कि बेसिकली एवरी डिले beyond the possession date written in the agreement, even for the ongoing projects and for the existing projects, the customer has a right to ask for interest and also for refund. I think this will be very very tricky in long term for developer. आज शायद हमें उसका इतना अंदाज नहीं है, बट ये बहुत ट्रिकी होगा डेवलपर के लिए। तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एटलीस्ट जो सेकंड वाला क्लॉज है, चलो इंटरेस्ट एक समझो अपन मांगेंगे, बट इंटरेस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो रिफंड वाला क्लॉज है वो तो हटाना ही चाहिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन सिंस मार्केट इज डाउन टुडे, many customers will ask for refund because they are getting refund along with the interest, and everybody here knows that every 90% of the projects are delayed now due to various reasons in last 3-4 years. So if you have mass refund, mass cancellation in RERA, no developer will be able to refund the money. So I think ये रेरा का जो डिमांड है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। और मेरे कस्टमर फ्रंट पे मेरे कुछ 3-4 पॉइंट्स है
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिमांड के लिए वापस लाने के लिए। सिंस अभी हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कम से कम हमें 10-12 साल का एक लर्निंग कर्व हो गया है, तो हम मुझे ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो भी कस्टमर्स है उनके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए उसका चैलेंज हमेशा से रहा है। 80% 70-80% कस्टमर हमारे पास जो भी आता है उसके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का चैलेंज रहा है। तो गवर्नमेंट ने मॉर्गेज गारंटी ये कॉन्सेप्ट लाना चाहिए इन हाउसिंग फाइनेंस। अगर ये हाउसिंग फाइनेंस में मॉर्गेज गारंटी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ये जो अफोर्डेबल सेक्टर में जो कस्टमर्स है उनको भी बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस के रेट में लोन मिलेगा, प्लस उनको फॉर्मल अगर डॉक्यूमेंट्स ना भी है फिर भी लोन मिल जाएगा। और वो बहुत सारे कस्टमर्स हैं ऐसे कि जो 70-80% कस्टमर जिसको आज लोन नहीं मिलता है वो बेसिकली उनका घर खरीद नहीं सकते बिकॉज लोन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने इसमें आ जाएंगे रडार में। और सेकेंडली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मॉर्गेज गारंटी जो स्कीम है ये बहुत सारे देशों में बहुत पॉपुलर है, लाइक यूएस वगैरह में। और इसमें गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है बेसिकली, दे जस्ट गिविंग अ गारंटी। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट कम्स अप विद अ मॉर्गेज गारंटी स्कीम फॉर डेवलपर्स। उसमें कस्टमर का भी बहुत फायदा है बिकॉज आज होता क्या है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको आज हाउसिंग फाइनेंस 12 से 18% के बीच में लेना पड़ता है, which is very very bad for poor customer. So if government comes up with this scheme, he will also get loan at 8% and it will be win-win for everybody. So this is my important point for affordable housing. So for from the on the customer front, I have three more points. One is this mortgage guarantee. Second is आज NPA for housing finance customer is 90 days. I think it should be increased to 270 days. Because as you know कि whoever is buying affordable housing is a genuine user and he is of course from a lower end of pyramid middle class. So हो सकता है कि किसी कारण से आज अगर उसका जॉब चले जाता है या कोई उसको अचानक से एक्सपेंडिचर आ जाता है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, तो 90 days is a very less period. I think it should be increased to 270 days. This is very important. Third important thing which can boost the demand is the ballooning EMI scheme. Actually, this is a very important way of financing, and I think this is a very innovative way of financing also. As you know, people आज अगर अपन हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो उसका EMI 15 साल तक कांस्टेंट रहता है। सपोजिंग 20 लाख का किसी ने फ्लैट लिया और उसका अगर समझो 15,000 EMI है तो 15 साल तक EMI 15,000 ही रहता है। आई थिंक दैट इज नॉट द स्मार्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग इट। अगर उसमें बलूनिंग किया जाए कि शुरुआत में EMI कम रहेगा और बाद में EMI ज़्यादा रहेगा, तो बहुत सारे कस्टमर जिसको बेसिकली हाउस घर लेना है वो अपने स्कीम के अंदर आ सकते हैं। और ये किया भी जा सकता है बिकॉज इनकम्स आर इंक्रीजिंग। इफ़ यू सी नॉर्मल जो कस्टमर है एवरी ईयर इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका इनकम 6-7-8% बढ़ता ही है। उसी तरह से अगर EMI को भी वो स्टैगर्ड वे में हम लोग बलून करते जाए, पहले शुरुआत में कम रख के बाद में बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे लोग को इसमें घर लेने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत नए कस्टमर्स का अपने को इसमें एडवांटेज होगा। तो इसमें डिमांड के ऊपर भी बहुत सारा एडवांटेज आएगा। तो ये तीन जो फैक्टर्स थे वो कस्टमर के लिए थे बेसिकली। NPA 90 से 270 डेज करना, मॉर्गेज गारंटी स्कीम एंड थर्ड इज बलूनिंग EMI। ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट के पास से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि CLSS स्कीम के अंदर करीब करीब 2,65,000 रुपये का गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है फर्स्ट होम बायर के लिए, अफोर्डेबल फर्स्ट होम बायर के लिए 2,65,000 का CLSS सब्सिडी का ये है स्कीम है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है इसको थोड़ा फ्रंट लोडिंग करना चाहिए। आज होता क्या है कि गवर्नमेंट ये पैसा बैंक को देती है और बैंक जो कस्टमर का जो लोन है वो कम कर देती है बेसिकली। वो करने से अच्छा आई थिंक ये जो CLSS का बेनिफिट है ये थोड़ा फ्रंट लोडेड करके अगेन जो पहले का जो स्टार्टिंग का EMI है वो कम से कम रख के उसमें ये बेनिफिट अपन कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, जिससे डिमांड काफ़ी बढ़ सकता है।
And so these are the few things which we can basically ask for government. और इसमें अगर chances है कि इसमें मिलने का भी काफ़ी chance है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्टली कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है गवर्नमेंट को. तो आई थिंक इंडस्ट्री ने ये डिमांड्स रखनी चाहिए गवर्नमेंट के सामने. सो बेसिकली आई कम टू माय लास्ट टॉपिक विच इज अफोर्डेबल हाउसिंग. Since everybody knows कि Exarabia was the first mover in affordable housing long back in 2010, and since we have such a lot of learning curve, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर हमारा काफ़ी लर्निंग कर्व बड़ा हो चुका है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इधर बिल्डर्स है या लैंड ओनर्स है जिसके पास लैंड अवेलेबल है डेवलपमेंट के लिए, बट वो बेसिकली डेवलप कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न. एक तो कस्टमर, एक तो उनका प्रोडक्ट बेसिकली डिमांड नहीं है बिकॉज मार्केट डाउन है अभी, और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है. तो वो जो लैंड उनकी जो पड़ी है वो उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा सब प्राइम लोकेशन है लैंड का, थोड़ा सा नॉन प्राइम लोकेशन है, तो उसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग इज द ओनली टूल टू मोनेटाइज द लैंड. तो बेसिकली आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग में लैंड ओनर के साथ में जॉइंट वेंचर या डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया जा सकता है और इसको मोनेटाइज किया जा सकता है. बिकॉज अगर किसी को लैंड में मोनेटाइजेशन करना है तो मुझे लगता नहीं है कि अफोर्डेबल के अलावा आज के तारीख में किधर भी इतना डिमांड है कि लैंड को मोनेटाइज किया जा सकता है. तो अफोर्डेबल में एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंड का मोनेटाइजेशन फास्ट भी होगा, उसका पैसा जल्दी भी मिलेगा और थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है बिकॉज इसमें वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा है. तो आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड. There are various developer and landowners who are sitting on huge land banks, but but doesn't have a lot of liquidity. So one can look at affordable housing. One can look at affordable housing as a tool to monetize the land. And even if they don't want to do it themselves, they can have joint ventures with companies like us and many other companies who are into affordable housing. And they can do a joint venture or a development management contract which will help them to monetize the land faster, sooner and better. So I think और अफोर्डेबल हाउसिंग में लास्ट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि सिंस अभी घर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत लोगों को ये कोविड के अंदर पता चला है. जो भी लोग स्लम्स में या चॉल्स में या सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रहते थे, they will try to actually get into a better organized building, organized township, and इससे बेसिकली ये जो लोग हैं ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग के ही कस्टमर्स हैं. बेसिकली जो भी स्लम या चॉल या सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रहने वाले कस्टमर्स हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग के कस्टमर है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर कोरोना अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बढ़ सकता है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. So I think I have touched all my topics and various topics I have discussed about. So I think good luck to everybody. And one more thing which I wanted to also stress out here is ये जो डिमांड्स हम लोग रख रहे हैं बेसिकली वेरियस फोरम से ये गवर्नमेंट तक डिमांड लिखित फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्रेडाई बोलो या हम लोग यूनाइटेड होके we should also have a common PR, basically common PR, like we can appoint a PR agency for that and we can do some common PR so that our voice is also heard by the government and policy makers will also be under pressure to do policies for real estate. I think this is a very, PR has a great power, and in a country like us where democracy is there, government we have to basically use PR very smartly to put pressure on various government this thing to help our industry. And one more last point which I want to basically also advise here is that through our various institutions like CREDAI, MCHI and NAREDCO, we can actually have a common advertisement budget across pan India basically to promote real estate as a asset class.
like you must have seen, there are like even stock market also. People, commonly promote mutual funds. Mutual fund industry has a lot of advertisement, promotions. Even if you see diamond industry, they have a common budget and they promote, diamonds in a big way as a product on TV and other mediums. So I think we are the largest spender in media. Real estate is the largest spender in media. We can have a common budget and we can nationwide do a lot of advertisement to basically uh, tell the people that how important is real estate as a product, how important is house for them, and this common advertisement can help, in a very very different way, in a very very credible way. So these were my thoughts. Thank you everybody for giving me this opportunity to speak and speak with you all people. Thank you very much. Big thank you to true real estate affordable housing icon, tycoon, Mr. Rahul Nahar from Pune. Thanks a Yes. lot, Rahul. Thank you, Rahul ji, Rahulji. Thank you all. thank you. Thank you.